हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. All right. I think most people have joined and it's time. Let's start. I hope my screen is visible. So yesterday we were talking about JavaScript. Um, we did the basics. Today we'll build on top of that. Let's create an HTML file. In it, at the bottom of the body, we import a script named code.js, and we write our code in there. Okay. Let's start with the console log. Hello world. This much should be second nature to you by now. I'll go live with this. Open the console in the browser, and we have hello world over here, right? All right. Now, we talked, I'll give you a very quick recap. We talked that to create a variable in JavaScript, always use const. Uh, uh, the arithmetic operations work just as they do in C++. This is plus, this is minus, this is divide, this is remainder, this is multiply, and so on, right? Um, we talked that functions calculate product x, y, or let's just say a, b, return a into b. They work just like they do in C++. You can calculate the product of x comma y, and you can console.log it, and you will get here 56, which is 7 times 8, right? Or you can have 10 times 8, which is 80, right? We talked about the fact that functions, there are several syntaxes that you can use to declare functions. So to create a function named calculate period, you can do this. You can also um, create this. This is called a nameless function. Um, and you'll have to store it in a variable like this. Now this is valid syntax. You don't have to give the name over here. You create a function and then you store it in a variable. And that's what the function name is, right? Calculate. Even when we did this, this is a name for this function, right? For this function. So this makes sense therefore. And this works the same way. X comma y, console.log. We go here, we see 80, right? There's another syntax as well. I was going to introduce it later, but let me introduce you to that right now. This is a modern syntax introduced in ES6. It's not more than a few years old. This is called the arrow function syntax, and that this is the syntax that you may see in most modern code bases. The way to declare the syntax is very easy. You remove the function keyword, you keep the parameters as they are, and you place a fat arrow between the parameters and the code. So like this. This is a function, right? This is called a fat arrow. That means it's an equals to sign then followed by a greater than symbol. Looks like an arrow, right? And this was inspired from mathematics. If you've done functions in mathematics, which I think you all probably have by now, then you've seen. Let me sorry, cancel my tablet. I forgot to connect it beforehand. Right, it's here. Uh, open this up. So in maths, you've probably seen stuff like f of x is equal to 2y plus 1, right? So similarly, you have the function name over here. Over here, you have the arguments. There can be multiple arguments as well. Sorry, I made a mistake here. This should be uh, 2x plus 1, right? Um,
the arguments between round brackets, then there's the equal to sign, and then there's the actual implementation, right? So this is what we're doing here as well. You have the arguments, then the equals to sign, only in this case, it's a fat arrow, and then the implementation. And there's one more catch to the arrow function syntax, which makes it particularly useful, which is that if you have a function, such as this function, that only does one thing, and that is that it returns something. Okay, so this function, it has only one line of code, and that is that it returns this particular value. If that is the case, then you can refactor this like this. You can remove the curly brackets, you can remove the return word, and you can move it to the same line. Now, this you may see looks exactly like a mathematical function would. A math function, the same function written in mathematics, the product function, would look like this. You can see this looks very similar, right? This is a function arguments equals to, and then the result, right? So this is called the arrow syntax, arrow function syntax for writing functions. If you have a multi-line function, a function that has more than one lines of code, and maybe it doesn't return anything, or it does return something, but it needs a few lines of code to calculate the return value. In that case, we don't do this. We have a code block over here in which we can. Uh, so, for example, if we have multiple lines, then we will need these curly brackets, and we'll do this like we do in a regular function. It's only when we can make the function a one-liner statement that we can do this. Right. So can someone tell me, can someone write the calculate sum function in the chat? Just write what will come after this equals to sign on the right hand side. Write as sum function. Yes, I am. That's perfect. And Vineet also did it right. Maha also has it right. A comma B is equals to fat arrow equals B, right? That's a calculate sum function. Yes, the first one is also right, right? So and I'll show you console.log calculate sum of x comma y, right? So it should be 18. That's it. And if we calculate the product, it should be 80, right? So it works. So this was the arrow function syntax. But now that's I just took a side trip there. That was not my goal for this lecture. I'll come to my goal in a minute to see if let me see if there are any questions. Since we don't declare the return type for a function in JavaScript, can we essentially return any type? Yes, you can return anything, or you can return nothing at all. So like in C++, you have to declare the return type beforehand, like if it's void or int or string or whatever. Over here, it's up to you, since it's not a statically typed language. Right. I want to see if we can return multiple things. Return multiple if we give it A and B, or let's say return double. And what it does is, let's say it returns A times 2 and B times 2. Doubles both numbers and returns. Is this valid syntax? Python में इस तरह की चीज होती है. I'm not sure if there is something like this in JavaScript 2,3. No, this does not work. Yeah, you cannot declare two things. Does this work? No. Yeah. So in order to return two things, you have to make it an array, and then you receive in an array as well. Return double 2,3. This works. Okay. So this function will return an array, which means that over here you will get 2 times 2 is 4 and 3 times 2 is 6. This is what the return value of the function is. So 4 gets stored in x and 6 gets stored in y. This is called the deconstruction syntax. But again, this is something you'll get used to, and it's not important at this point. It's like templates in C++. I do not remember what templates were in C++. It's been a long time since I wrote C++. Right. So what I wanted to teach you today are objects. Since you're all mostly CS 100 students, I'll take a poll to see if there are any people here who've taken CS 200. If you have taken CS 200, say yes.
Interesting. So nine of you have taken CS student X and one of you has not. So the one who has not, maybe they're not from LUMS. We do have one student here who's not from LUMS. So let me ask a different question. Do you know about object-oriented programming? Have you done it before? I'll take a poll again. All right, interesting. 11 out of 11. So there's no one in the class who does not know. Cool. I'll then assume that and I'll move forward with that. It's possible that there's someone who's not in the class, but they're watching a recording and they don't know. But we'll just have to take that risk. Because if I start to teach you object-oriented programming from scratch, then the 11 of you will lose interest, most of the class. So that's not ideal. I can send a separate recording to the person who does not know, if there is one person like that. So you already know objects from C++. You can create classes and objects, right? So JavaScript में भी आप classes बना सकते हैं. You can create you can say person class बना सकते हैं. उसके अंदर you can create variables like name. Okay, I think इसमें शायद I don't really know the syntax. It's been a while. Name, age, like this. You can create a constructor, I think. Yeah. इसमें you can take x, y, where x is a name में आप x स्टोर कर दें, age में आप y स्टोर कर दें. आई थिंक आप दिस डॉट नेम करते हैं. यस, दिस डॉट एज करते हैं. एंड देन लेट्स से वी प्रिंट कई फंक्शन बना लेते हैं जो करता ये है कि वी कंसोल डॉट लॉग आई एम. उसके बाद वो अपना नाम प्रिंट करता है एंड आई एम. फिर वो अपनी एज प्रिंट करता है, years old, right? Let's create a new person, and in the constructor let's give him the name Rohan and the age 26, and store it in a variable called p1, and then we say p1 dot print. Let's run this code in the browser, and it says I'm Rohan, I'm 26 years old. So you know object-oriented programming, right? So this is a class. ये सिंटैक्स बिल्कुल उस तरह का जिस तरह का हर लैंग्वेज के अंदर होता है. पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स काफी अजीब सा है, बट इसमें सी प्लस प्लस की तरह का ही सिंटैक्स है. और सी प्लस में आप न्यू कीवर्ड के साथ आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ भी हमने एक नया ऑब्जेक्ट इस तरह बनाया है. p1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पर्सन, राइट? और उसके ऊपर ये मेथड है डॉट प्रिंट का. वही डॉट सिंटैक्स सी प्लस प्लस के अंदर भी आई थिंक ऐसे ही होता है. तो ये इससे आप फेमिलियर है. बट मैं अभी जिन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो ये वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं है. इन्हें हम क्लास ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जावास्क्रिप्ट में एक और तरह का ऑब्जेक्ट भी होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको दूसरी लैंग्वेजेस में अक्सर मैप कहा जाता है. पीएचपी में उनको एसोसिएटिव अरेज कहते थे हम लोग. और पाइथन में उनको हम क्या कहते हैं, आई थिंक, हाँ, पाइथन में उनको डिक्शनरीज कहते हैं. ठीक है. तो सो पाइथन में जो डिक्शनरीज होती हैं, पीएचपी में जो होती हैं एसोसिएटिव अरेज, जावास्क्रिप्ट में उन्हें हम सिंपली लिटरल ऑब्जेक्ट्स अक्सर कह देते हैं. जैसे अगर से कोई सिर्फ ऑब्जेक्ट कहता है ना यूजुअली, उसकी मुराद लिटरल ऑब्जेक्ट्स होती है. अगर वो जो अगर उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले ऑब्जेक्ट्स की बात करनी होती है, जैसे कि मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन वाला, तो यूजुअली वो या तो क्लास ऑब्जेक्ट बोलता है, या अगर कॉन्वर्जेशन पहले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तनाजुर में हो रही हो, या आप एक ऐसे कोड बेस को देख रहे हैं जो कि है ही सारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखी हुई, फिर ये हो सकता है कि कोई बंदा ऑब्जेक्ट बोले और उसकी मुराद वो वाला ऑब्जेक्ट हो. वरना यूजुअली जब भी आपको इंडस्ट्री में लफ्ज ऑब्जेक्ट सुनाई देगा, उसकी मुराद ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो मैंने अभी बनाया था, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसकी मुराद एक और तरह का ऑब्जेक्ट है जिसे हम लिटरल ऑब्जेक्ट कहते हैं. और वो इस तरह की है. हाँ, जिस तरह से आप एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शन, उसी तरह से अरे भी स्टोर कर सकते हैं. उसी तरह से एक और चीज स्टोर कर सकते हैं जिसे हम एक लिटरल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है. ठीक है. ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने भी बनाया. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज. ठीक है. मीनिंग, आप एक की लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, और उसको एक वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, कॉमा. फिर आप एक और की देते हैं, उसको एक और वैल्यू दे देते हैं. ठीक है. आप एक और की देते हैं, एक और वैल्यू दे देते हैं उसको, बल्कि मैं इसको. ठीक है. लेट मी कॉल दिस पर्सन. ठीक है. तो अब जो पहले मैंने बनाया था ना P1 के नाम से, हालांकि वो भी एक पर्सन ऑब्जेक्ट था, ये भी एक पर्सन ऑब्जेक्ट है. ठीक है.
बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, ये किसी क्लास से नहीं बना, इनमें फर्क ये है। ये, हाँ, मैं वही आयन जी कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली वही है जो कि पाइथन में डिक्शनरी होती है, या जो पीएचपी में एसोसिएटिव अरेज होती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास से नहीं बना, यानी एक टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करती, एक क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी ये एक इंस्टेंस है, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टैंड अलोन सेपरेट थिंग ऑफ इट्स ओन। ठीक है, बट इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू हाउ एन एक्चुअल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट वर्क्स। तो एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट का अगर नेम होता है तो आप उसे कैसे एक्सेस करते हैं? आप उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर डॉट सिंटैक्स के साथ आप उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, तो यू कैन एक्सेस हिज नेम लाइक दिस। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी डू दैट, लेट मी क्रिएट अ क्लास पर्सन फॉर यू। नेम इज रोल नंबर। ठीक है, देन कंस्ट्रक्टर नेम एज रोल नंबर, सॉरी, this dot name is equal to name, this dot age is equal to age, this dot roll number is equal to roll number। जब मैं दिस डॉट करता हूं तो हम इस पर्सन ऑब्जेक्ट की के नेम या एज या रोल नंबर की बात कर रहे होते हैं। जब मैं खाली नेम बोलता हूं तो उससे मुराद ये वाला नेम होता है जो कि कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के अंदर आया है। ठीक है, एंड देन आई विल से, अभी प्रिंट में प्रिंट नहीं रखता मैं। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल इट p1 person, न्यू पर्सन रोहान 26 22 60। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ p1 डॉट नेम एज रोल नंबर कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं? ठीक है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ console.log। ठीक है, या मेरे ये ऊपर में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। लेट मी कॉल इट फॉर एग्जांपल मुफज्जल, एज आई डोंट नो, रोल नंबर आई डोंट नो, राइट, और नीचे रोहान है। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का नेम भी प्रिंट किया, नीचे वाले का भी प्रिंट किया, तो कंसोल के अंदर हमारे पास दोनों आ जाते हैं, वो फजल भी आता है, रोहान भी आता है। तो देखने के यहाँ तक ये जो ये लाइन है, इसका सिंटैक्स एग्जैक्टली वही जो इस लाइन का सिंटैक्स है। नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसको P2 कह देता हूँ अगर, तो ये देखें, P2 डॉट नेम P1 डॉट नेम, तो ये एक्सेस करने का सिंटैक्स एक ही है। बट फर्क क्या है कि यहाँ पे आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस टेम्पलेट, फ्रॉम दिस क्लास। क्लासेस मौजूद है यहाँ पे, इस क्लास की इंस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि ये वाला जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, जो जिसे हम लिटरल ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसमें कोई क्लास नहीं होती, वो बस एक एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, जिस तरह एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट में भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके मेथड्स होते हैं। आप लोगों ने, बल्कि आप उसको आई थिंक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स कहते होंगे सी प्लस प्लस में। तो इसी तरह से इसके अंदर भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी यूजर वैल्यूज होती है। ठीक है, और उसके अंदर आप वो भी बना सकते हैं, और ऑब्वियसली इसको आपको इंस्टेंशिएट नहीं करना पड़ता, यानी आपको न्यू समथिंग करके नहीं बनाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये बन गया यहीं पे, यानी इट्स जस्ट देयर। जिस तरह क्लास होती है ना, जब क्लास डिक्लेयर करते हैं तो अभी मेमोरी के अंदर एक एक्चुअल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप एक पर्सन की क्लास बनाते हैं, देयर इज नो एक्चुअल पर्सन इन मेमोरी। अ क्लास इज लाइक एन आइडिया, अ टेम्पलेट। व्हेन यू से न्यू पर्सन, देन यू क्रिएट एन एक्चुअल पर्सन इन मेमोरी ऑफ दैट क्लास। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्लास ही नहीं है, यहाँ पे यू डायरेक्टली क्रिएट दी ऑब्जेक्ट, ये मेमोरी के अंदर चला जाता है, ये इट्स प्रेजेंट, इट्स देयर। ठीक है, और आप इसकी अगेन आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। यू कैन इवन हैव अ फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से इंट्रोड्यूस, इसके अंदर मैं एक फंक्शन रख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, वो कंसोल करता है आई एम द नेम, देन इट सेज आई एम दिस एंड माय एज इज एज, सॉरी, एंड माय रोल नंबर इज दिस डॉट रोल नंबर। ठीक है, so now I can say p2 dot introduce, I can call this function and it says I am a fuzzer, my age is 23। ठीक है, so any questions here? Is it declaring it with const necessary? Can we add this? अच्छा, very interesting question. uh, आप एड एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। यू कैन से p2 डॉट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, तो वो जो भी है, लाइक लाइक 2001 और whatever it is, यू कैन इवन रीडिक्लेयर दिस, लाइक यू कैन से p2 डॉट इंट्रोड्यूस, और आप एक नया फंक्शन दे दें अगर आपको ऊपर वाला पसंद नहीं है और आपने बाद में उसको ओवरराइट करना है तो आप यहाँ पे एक नया दे दें जो कि ईयर ऑफ बर्थ को भी इंक्लूड करे। एंड आई वॉज born in
दिस डॉट ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, जाते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको कॉल नहीं किया, पी पी टू डॉट इंट्रोड्यूस। आप देखें यहाँ पे मुफज्जल रोल नंबर दिस एंड आई वाज बोर्न इन 2000। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ओवरराइट भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ किया, और नई प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे किया। ये क्लियर आया? Monique का क्वेश्चन है, I get the need to make decks for one or two examples, but if we need to create multiple such objects, isn't it better to if we create a class object with defined functions and do so? अच्छा हाँ, बिल्कुल। If you have the need to create multiple objects that have the same signature, in the sense they have the same properties and the same functions always, then yes, class-based objects are more suitable. उसमें भी again, we have other ways as well of enforcing के अगर तीन चार ऑब्जेक्ट्स बनाए जाए तो उनका पैटर्न सेम हो, लेकिन वो टाइप स्क्रिप्ट में है मोस्टली। आप इस ऑब्जेक्ट की एक टाइप डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी, एंड टाइप स्क्रिप्ट विल इन्फोर्स दैट। और मोस्ट लोग, ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड आपको फ्रंट एंड पे कम ही नजर आएगा, बहुत कम नजर आएगा। पहले होता था रिएक्ट के जो शुरू वाले वर्जन थे, वो उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, तो वो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। बाद में अब रिएक्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे आ गई है, अब उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, तो यूजुअली लोग लिटरल ऑब्जेक्ट्स ही यूज करते हैं। बट हाँ, अगर कोई इनहेरिटेंस चाहिए हो या उस तरह की कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स चाहिए हो, तो फिर पीपल डू यूज क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, बट वो रेयर रेयर यूज केस है। डू वी नीड सेटर्स टू चेंज एट्रीब्यूट्स? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस को ऐसे ओवरराइड कर दिया है, मैं किसी भी एट्रीब्यूट को p2 डॉट नेम करके मैं ये भी कर सकता हूँ, नेम करके मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ऐसे करके। तो अब अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो पूरा नाम आएगा, कोई भी चीज़ आप ओवरराइड कर सकते हैं इस तरह। कैन यू साइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू एन अरे? हाँ बिल्कुल, अगेन क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक वैल्यू होती है, जैसे कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वी कैन हैव एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स से ये तो हमारे पास एक p2 ऑब्जेक्ट था, ठीक, बल्कि इसको p1 कह लें, एंड लेट्स से वी क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट और लेट्स कॉल इट p2। ठीक है, बल्कि इस दफा पर्सन नहीं बनाते, इस दफा बनाते हैं car2। ठीक है, ये पर्सन वन है और car2 है, car1 है। ठीक है, तो इसका नेम जो है वो है टोयोटा यस। इसकी जो मॉडल है 2019 है, और इसका और क्या होता है, इसकी माइलेज कर लें वो है 70,000। और इंट्रोड्यूस करा लेते हैं इसको भी, दिस इज टोयोटा यारिस एंड इट्स मॉडल इज एंड इट्स माइलेज। ठीक है, तो आपने अब दो चीजें कर दी, पर्सन वन और कार1। ठीक है, अब मैं एक अरे बनाता हूँ, कौन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लें, जो भी कहना है इसको कह लें, उसके अंदर हम एक अरे रख देते हैं। सर वो कार के इंट्रोड्यूस में आपने एज और रोल नंबर ही रखा है। ओके, थैंक यू। ये देखें जावास्क्रिप्ट में, मतलब थोड़ा सा मसला होता है कि वो अब कुछ भी नहीं कहती। मतलब यहाँ पे मुझे आईडी में थोड़े से एरर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन वो टाइपस्क्रिप्ट अगर ये होती तो वो बता देती मेरी फॉर्म। खैर, नो वरीज। तो आई कैन स्टोर पर्सन वन हियर एंड आई कैन ऑल्सो स्टोर कार्स वन हियर। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसके थ्रू, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पर्सन का इंट्रोड्यूस फंक्शन कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? कैन समवन टेल मी? इंडेक्स जीरो डॉट इंट्रोड्यूस। हाँ बिल्कुल, ये करूंगा तो मुझे इंडेक्स जीरो पे पर्सन पड़ा है, मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डॉट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पे आपके पास इंट्रोड्यूस आ गया है। सिमिलरली, बट आई कैन इवन रन अ फॉर लूप, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। मुझे पता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रोड्यूस नाम का फंक्शन है, तो आई कैन जस्ट गो लाइक दिस एंड कॉल इंट्रोड्यूस। तो पहले फजल अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर गाड़ी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो या एनीथिंग, यू यू कैन डू एनीथिंग। इनफैक्ट आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी कि आप ये इसको एक वेरिएबल में स्टोर करें फिर अरे के अंदर डालें। आप इसको एज इट इज भी अरे में डाल सकते थे ऐसे, और इसको भी एज इट इज जो ऑब्जेक्ट है उसको आप अरे में डाल सकते थे ऐसे। ठीक है, और मैं ऊपर से इनको हटाता हूँ, इधर से मैंने फॉर्मेट किया है इसको। तो ये आपके पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये एंड हो रही है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है,
फिर कॉमा कॉमा है जहाँ से अरे का अगला एलिमेंट शुरू हो जाता है। ये इंडेक्स 0 है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये इंडेक्स 1 है। ये भी आपको अक्सर ही नजर आएगा काफी सारा अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स और इस तरह करके, ठीक है? तो यू हैव टू गेट यूज टू दिस सिंटैक्स। ठीक है, लेट मी टेक अ पोल टू सी इफ यू आर सो फार विद मी। ठीक है, सीम्स इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। हम अच्छा नाउ, और आपको पता है अब ये भी कर सकते हैं, इफ आई क्लियर ऑल दिस, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड लेट्स कॉल इट, लेट्स हैव अ नेम प्रॉपर्टी, लेट्स हैव एन एज प्रॉपर्टी एंड रोल नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, यू कैन लेट्स कॉल दिस पर्सन, यू कैन हैव ऑब्जेक्ट्स विद इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स, ठीक है? क्योंकि अगेन आप किसी प्रॉपर्टी को जो वैल्यू देते हैं वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है? एनी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? उसी तरह से एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो अ वैल्यू। तो आई कैन से फॉर एग्जांपल फादर, उसमें एक और ऑब्जेक्ट मैं दे देता हूँ, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी अपनी एज होगी, और उसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल है ही वो भी है। तो आई कैन से, अब मुझे ये बताएंगे अगर मुझे हाँ इस पर्सन के फादर का नेम प्रिंट करना है, मैं कैसे करूंगा? कंसोल लॉग करना है मुझे। हाउ डू यू प्रिंट द नेम ऑफ person's father in the console log? यस, बिल्कुल, वलीद एंड सैफ आर बोथ राइट। पर्सन, जिससे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया, उस पे मैंने किया डॉट फादर, उससे मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है? यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने किया डॉट नेम, जिससे कि मुझे ये प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई। तो वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगी, पर्सन डॉट फादर डॉट नेम, ठीक है? एंड यू कैन सी दिस इज एन इनक्रेडिबली मतलब यूजफुल थिंग, लाइक आई कुड इवन गो हियर एंड आई कुड mention details about my grandfather. His name was, I've forgotten his name. दादाबू का नाम भूल गया है, हैरत की बात है। वाह। दादू का नाम भूल गया। तो ये सीन है, खैर नॉन। तो आई कुड डू पर्सन डॉट नेम ना, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है अननोन, ठीक है? सो ये एंड यू कैन सी दिस इज एन इनक्रेडिबली मतलब यूजफुल थिंग, राइट? Like how else would you store this information about a person, a person's father, his father, his father, his father, or let's say this person has children. This would be an array obviously, and in the array you will have objects where each object is a particular child. ये एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, ठीक है? हर बच्चे का अपना नाम होगा। तो अभी बच्चे तो नहीं है, या हाइपोथेटिकल लिख लेते हैं, हमजा एंड सना। मैं अपने बच्चे का नाम कभी हमजा या सना नहीं रखूंगा, लेकिन स्टिल इसकी एज कर लेते हैं 7 है, और इसकी एज है 6 5। सो या, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से पर्सन डॉट चिल्ड्रन, अगर मैं करता हूँ तो एक अरे प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए दो बच्चे हैं, ठीक है? और एक अरे ऑफ दो ऑब्जेक्ट्स है। आई कैन से पर्सन डॉट चिल्ड्रन 0, पहला बच्चा, उसका नेम, तो मुझे उसका नेम मिल जाएगा, हमजा, ठीक है? या 1 का नेम करूंगा तो मुझे सना मिल जाएगी, ठीक है? तो you can see this is an extremely useful data structure and an object in JavaScript. Yes, you can have objects within objects within objects, objects within arrays. जैसा ये है, this is an object within an array within an object, right? And it's incredibly intuitive, और ये इतना intuitive था कि इस data structure के ऊपर we formed entire databases now. No SQL databases की कुछ types होती हैं, जैसे MongoDB है, they took inspiration from this pattern। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में चीजें स्टोर करते हैं, और वो उसमें इसी तरह से होता है। तो या दिस इज फेयरली इंटरेस्टिंग। आई विल टेक अ पोल टू सी इफ यू विल विद मी। कूल, ठीक है।
एक आध बच्चे को लिटिल क्लियर है, वो भी आप इसको हाथ से लिखेंगे तो होपफुली और क्लियर हो जाएगा। ये हाँ, ये बैकएंड में भी बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं, फ्रंट एंड में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स, मैं कल आपको एक चीज कह रहा था, जिस तरह देखिए हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, जिस तरह अब मैं ये कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ से हटा देता हूँ ये वाली, बट हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है, उसकी तीन प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी किस तरह एक्सेस होती है, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर डॉट करके आगे प्रॉपर्टीज आती है, राइट। और उसमें कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे हम अभी मैंने आपको दिखाया भी, फंक्शंस भी हो सकते हैं, इंट्रोड्यूस का फंक्शन होता है, जो भी होते हैं, राइट। उसी तरह से यू कैन नाउ सी कि जब मैं एक अरे बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ अरे डॉट फॉर ईच, जब मैं अरे डॉट लेंथ करता हूँ, तो यू कैन नाउ सी के एन अरे, ये डॉट सिंटेक्स में कैसे यूज कर रहा हूँ। एन अरे इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, इन द सेंस के जावास्क्रिप्ट में अंडर द हुड, दैट इज हाउ इट इज implemented. When you create an array, this variable actually contains an object. Part of that object contains the data of the array, but part of it contains variables, attributes and functions. Attributes like the length of the array, functions like array dot for each, जिसको हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। इसमें यू कैन रन अ फंक्शन फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन द अरे, एवरी एलिमेंट इन द अरे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अरे जो है एक्चुअली, इट्स एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, मतलब आप उसमें इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग कि यू मेट थिंक ये तो मैं एक अरे वेरिएबल के अंदर एक अरे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज ट्रू, अगर आप कंसोल लॉग करेंगे अरे को, यहाँ पे देंगे, तो आपको ऐसे ही नजर आएगा ये, ठीक है। पर आप देखेंगे यहाँ पे ये एलिमेंट्स तो आ गए, लेकिन नीचे देख रहे हैं ये प्रोटोटाइप के नाम से, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। फाइंड का फंक्शन है, फाइंड लास्ट इंडेक्स का फंक्शन है, फॉर ईच है, जॉइन है, कीज है, ये सारे फंक्शंस हैं, पॉप है, पुश है, रिड्यूस है, जिसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। हमने देखा था ना, अरे डॉट पुश करके आप अरे के एंड पे नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली exactly उस तरह से ये जो डॉट पुश भी है, ये भी एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन, इवन स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। तो इफ आई डू दिस, ठीक है, एंड आई गो एस डॉट, तो ये देखें बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। तो आई कैन से एक्स एस डॉट इंक्लूड्स, एंड आई कैन चेक इफ इट इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये इंक्लूड्स का फंक्शन यहाँ पे कैसे आ रहा है, और हम डॉट के साथ इसको यूज कैसे कर रहे हैं, ये इसी तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि एस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये स्ट्रिंग भी पड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शंस और और वो भी मेथड्स भी पड़े हुए हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी डॉट लेंथ पड़ी होती है, एक एट्रीब्यूट पड़ा होता है, ठीक है। आप देखिए, हवर करेंगे ना आप इस पे, तो आपको बताएगा कि ये प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारी, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इन दिस सेंस इज एन ऑब्जेक्ट, इवन नंबर्स, एक्स डॉट करेंगे तो आपको देखेंगे आपके पास फंक्शन है, टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। तो ये एक यूजफुल चीज है टू नो। अगेन बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती, काफी सीजन इंजीनियर्स को ये बात पता नहीं होती। तो ये अगर आपको इतनी नहीं पे भी पहले पढ़ी तो मसला नहीं है, आप फिर भी लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। इससे पहले ये चीज पता होने से पहले यू कुड क्रिएट अरेज, यू कुड प्ले विद देम, आप फॉर लूप्स सब कुछ कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ लोअर लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज डिटेल दैट यू शुड मे बी नो, थोड़ा सा फायदा है अगर आपको ये पता हो तो, ठीक है ना। आई थिंक पाइथन में भी ऐसे ही होता है, आई थिंक पाइथन में भी एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो हम ये करते हैं कि आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक, 7:05 हुए हैं, 7:10 पे वापस हैं, एंड देन आई टॉक टू यू अबाउट द डॉम एंड हाउ जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट्स विद HTML. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो 7:10 पे वापस आ जाए।
बाहर आई है, आप आए, बाहर आई है, सुंदर कामनी मंगल करने अरे नहीं है पानी सारे गा सारे पामगा सारे गा रे म पानी जा रे नी दा पामगा करने सुंदर कामनी निर्मल गात हरि मन कामनी करण निर्मल तेरी तारीफ कैसे करूं, निर्मल गात्र हरि मन कामनी करण सुंदर re ma ba ni da ba da pa ma ma ga ma re ma ba ni da ba re ma ba ni da ba re ma ba ni da ba re ma ba ni da ma ba ni da ba da re da re ni da pa ma ba da ni da ga ma ga ni da ni da ni da da ba ma ma karan sunar All right, let's resume the class. Acha. So I was going to talk to you about the DOM. DOM stands for Document Object Model. In simple terms, what that means is कि अपनी HTML के अंदर जब भी आप कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसके ऊपर मैंने एक हेडिंग बनाई, नीचे मैंने नेट से एक इमेज बना दी, ठीक है. Whenever I create any element in HTML, when this goes to the browser and when the browser paints the screen, when the browser runs the HTML, what the browser does is कि आपकी जावास्क्रिप्ट भी चूंकि ब्राउजर में ही चल रही है, ठीक है, ब्राउजर क्या करता है कि हर HTML एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना देता है आपको.
ठीक है। व्हाट दैट मीन्स इज कि इमेजिन इट दिस वे कि आपके पास ये ब्राउजर की विंडो है, यहाँ ऊपर एड्रेस बार है, ठीक है। यहाँ नीचे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ आपके पास एक हेडिंग है, आपके पास कुछ पैराग्राफ है, नंबर, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, ये वाला, और एक दूसरा एलिमेंट ये है, ठीक है। और आपके अब ब्राउजर के अंदर ये HTML तो है ही, ठीक है, उसको HTML को उसने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। आपका ब्राउजर ही जावास्क्रिप्ट भी चला रहा है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ योर ब्राउजर इन द बैक, ठीक है, इट रन्स जावास्क्रिप्ट एज वेल। लेट्स कंसिडर दिस पिंक बॉक्स टू बी the part of the browser behind the scenes that is running your JavaScript code, ठीक है। क्योंकि JavaScript कोड आपको पता है नजर तो नहीं आता, इट्स नॉट लाइक HTML। वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, उसका आउटपुट आपको कंसोल में नजर आ रहा होता है, ठीक, पर वो पीछे से चल रहा है, ठीक है। द व्हाट द ब्राउजर डज इज कि वो ये जो हेडिंग है, ठीक है, इसको पकड़ता है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है, इस हेडिंग के लिए, ठीक है। लेट्स से ये हेडिंग का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या मेथड्स होते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, बट एक ऑब्जेक्ट बना देता है। सिमिलरली वो इस पैराग्राफ के लिए भी एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बना देता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनमें और इन HTML जो एक्चुअल एलिमेंट पेज पे नजर आ रहा है उसमें, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिक्ट किस्म की बाइंडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव दिस ऑब्जेक्ट विद यू इन योर जावास्क्रिप्ट कोड एंड यू यूज इट टू चेंज समथिंग, तो इस ऑब्जेक्ट में इस एलिमेंट के बारे में हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ये स्क्रीन में किस लोकेशन पे है, इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसकी CSS क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी वजह शेडो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये इसका मार्जिन कितना है, इसकी पैडिंग, सब कुछ इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है इस हेडिंग का, उसके अंदर डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इस हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट, आप उसको ऑब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करके समथिंग एल्स इसके अंदर सेव कर देते हैं। पहले इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये लफ्स हेडिंग, अब आप उसके अंदर कुछ और सेव कर देते हैं। तो ब्राउजर क्या करेगा, यू यू हैव चेंज दिस नाउ, ठीक है। सो इज देयर अ लेसो टूल, नहीं है, खैर। um, चूंकि आपने इस चीज को चेंज कर दिया है, ब्राउजर क्या करेगा कि वापस ब्राउजर में जाके हेडिंग का एक्चुअल टेक्स्ट चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाएगा लिखा हुआ समथिंग एल्स, ठीक है। यानी आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं वहां पे चेंज हो जाता है, अगर वहां पे कुछ चेंज हो जाए किसी तरह तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। इनकी स्ट्रिक्ट बाइंडिंग होती है एंड द ब्राउजर इंश्योर्स दैट, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर एक हेडिंग पड़ी हुई है, एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है HTML के अंदर, वो ब्राउजर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ये कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए ये चीज है कि देर आर सम ग्लोबल वेरिएबल्स दैट आर ऑलवेज डिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में चल रही है तो ब्राउजर न सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स बनाता है बल्कि कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी बनाता है जिन्हें हम ग्लोबल्स कहते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कुछ बनाता है, ठीक है। जिनमें फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम ये होता है, ठीक है। उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक आई कैन शो यू। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, मैं डॉट करूंगा, ये देखें इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इसमें फंक्शंस हैं, इसमें प्रॉपर्टीज हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स योर HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट के बारे में इसको सब कुछ पता होता है इसको, ठीक है। तो लेट मी कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है, एंड शो यू। हम यहाँ पे आते हैं ब्राउजर में, ये है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये देखें, ये इसने प्रिंट कर दिया है। एंड इफ आई हवर ओवर इट ऐसे, तो देखें वो पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रीन जो है वो ब्लू हो जाती है, वो हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स, दिस डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे इस पे हवर करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, देखें इसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है। इफ यू क्लिक हवर ओवर दिस ऑब्जेक्ट, द ब्राउजर हाईलाइट्स द इंटायर स्क्रीन इन ब्लू, telling you that this document object that you're hovering over is linked to
दिस वेब पेज, तो वो वेब पेज को हाईलाइट करके आपको दिखाता है, ठीक है। नाउ दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्स मेनी यूजफुल थिंग्स, वन ऑफ विच इज अ सेट ऑफ फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। और गेट एलिमेंट करने के बहुत से तरीके हैं, बट हम कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। वी यूज दिस फंक्शन टू गेट एक्सेस टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर इस हेडिंग की कोई आईडी थी, हम यहाँ इस फंक्शन को वो आईडी देंगे, तो हमें इस पूरी कॉल के रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, हमें ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस हेडिंग का कॉरिस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड लेट मी शो यू दैट। हम HTML में जाते हैं, क्योंकि हमने हेडिंग को कोई आईडी नहीं दी थी, हम आईडी देते हैं माय हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ले, ठीक है। सो व्हाट एम आई सेइंग हियर, आई एम सेइंग कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा हुआ वो एलिमेंट जिसकी ये आईडी है, वो मुझे दे दो, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन we will call it the heading object or whatever। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई कंसोल लॉग दिस, वॉच। यहाँ पे आप देखिए, आपको नीचे वो हेडिंग नजर आ रही है, एंड इफ आई हवर ओवर इट, यू सी ऊपर हेडिंग हाईलाइट हो गई है कि दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स दिस, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज भी होती है। ये नीचे आपको ये जरा प्रिटिफाई करके दिखा रहा है ना, ये सिर्फ में ब्राउजर का एक फीचर है कि वो कंसोल के अंदर आपको इसको एज एन ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको वो HTML के फॉर्म में दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये बस ब्राउजर का एक फीचर है। इसके तरीके भी हैं, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट स्टिल दिस इज एन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जो उस हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ लेट मी क्रिएट दिस ड्राइंग। What I can do is I can make changes to it or I can read it. For example, मैं console log करता हूँ, क्या चीज, heading object dot text content, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर, जिसमें उस हेडिंग के अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट कंटेंट जो है, ये पड़ा होता है। इफ आई कंसोल लॉग दिस, तो ये देखें यहाँ पे ये कंटेंट है, जो कि ये वाला कंटेंट था, ठीक है, एग्जैक्टली पड़ा हुआ है। और ये राइटेबल है, मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, इक्वल्स टू करके मैं कर सकता हूँ चेंज्ड कंटेंट। आई गो बैक, तो ये देखें, ठीक है। मैं अगर जावास्क्रिप्ट की दुनिया में इस ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो चेंज कर देता हूं, तो ब्राउजर वेट कर रहा होता है। ब्राउजर देखता है अच्छा तुमने चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट में, मैं वापस HTML में जाके ये चेंज वहां पे भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि ये हमेशा सिंक में रहेंगे, जो एक्चुअल एलिमेंट है और उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दे विल ऑलवेज बी इन परफेक्ट सिंक। आप यहाँ कुछ चेंज करेंगे यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज करेंगे यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेक अ पोल टू सी कि ये चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है। समझ आ रही, ठीक है, कूल, सही है। सो clear to almost all of you. To a few of you, it's not completely clear, but it will get clear soon. तो मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसको एक आईडी देता हूँ, डेमो, ठीक है। लेट्स गेट इट। इस पैराग्राफ का जो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में ऑब्जेक्ट है, उसे गेट करते हैं, डेमो। मुझे इससे पैराग्राफ मिल जाएगा वो, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें बड़े मजे के फंक्शन होते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल स्टाइल्स भी होते हैं, जिसके अंदर डॉट करें तो आपको यहाँ पे सारे CSS प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, डॉट बैकग्राउंड, डॉट बॉर्डर, डॉट वट, ठीक है। तो आई कैन से डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट टेक्स्ट डॉट कलर करते हैं, डॉट कलर, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ टू रेड। तो गो बैक, ये देखिए रेड हो गया ये, ठीक है। मजे की बात है। इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग इंटरेस्टिंग है। लेट मी, ये थोड़ी सी शायद आपके लिए उसके लिए मुझे पहले एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी। हमने कॉल बैक्स तो कल पढ़ लिए थे, वेर यू पास फंक्शंस टू अदर फंक्शंस। अच्छा, एक और ग्लोबल वेरिएबल है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसे कहते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, इस फंक्शन, ये एक ग्लोबल फंक्शन है जो कि ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है। सेट टाइम आउट के फंक्शन को आप दो चीजें देते हैं, आप इसको एक फंक्शन देते हैं और एक नंबर देते हैं। लेट्स कॉल इट अ फंक्शन, माय फंक्शन,
जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डेमो पकड़ता है, यानी इस पैराग्राफ को पकड़ता है, और पैराग्राफ का जो स्टाइल डॉट कलर है उसको रेड कर देता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जो भी हमने किया था। आप इसको एक फंक्शन दें और एक नंबर दे दें, जैसे कि 3000। ये है टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो ये सेट टाइमर क्या करेगा कि ये इस फंक्शन को इतने सेकंड्स के बाद कॉल कर देगा। ठीक है, देखिए कि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया, मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा, हमने सिर्फ ये फंक्शन प्रोवाइड किया सेट टाइम आउट को। ठीक है, जो कि ब्राउजर का एपीआई है, ब्राउजर का एक फंक्शन है। तो यानी कि हम ब्राउजर से कह रहे हैं कि यार ये फंक्शन पकड़ो और एक टाइमर टाइमर चला दो, एक 3 सेकंड्स का, 3000 मिली सेकंड्स का। 3000 मिली सेकंड्स के बाद, ये 3 सेकंड्स के बाद ये जो फंक्शन ऐसे कॉल कर देगा। ठीक है, तो ब्राउजर कर देगा। ठीक है, तो होगा ये कि आपका जब पेज लोड होगा तो पैराग्राफ ब्लैक होगा, 3 सेकंड्स के बाद वो रेड हो जाएगा। मैं रीलोड करता हूँ, 1 2 3, ये रहा। ठीक है, 3 सेकंड्स के बाद ये रेड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह का एक और फंक्शन भी है, सेट इंटरवल कहते हैं उसको। उसका सिग्नेचर बिल्कुल यही है, आप उसको एक फंक्शन देते हैं, एक नंबर देते हैं। फर्क बस ये है कि ये क्या करता है, ये हर 3 सेकंड बाद कॉल करेगा इसको। ठीक है, एवरी 3 सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल लगाता हूँ, कलर ग्रीन। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ग्रीन रखते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ पैराग्राफ का जो स्टाइल डॉट कलर है वो ग्रीन है तो उसे रेड कर दो, अदरवाइज अगर वो रेड है तो उसे ग्रीन कर दो। यानी ये शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, हर 3 सेकंड्स के बाद माई फंक्शन कॉल होगा। माई फंक्शन वो पैराग्राफ पकड़ेगा, देखेगा कि उसका कलर अभी ग्रीन है, बाय डिफॉल्ट वो ग्रीन होगा, उसे रेड कर देगा और ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। 3 सेकंड और गुजरेंगे, दोबारा ये फंक्शन रन होगा। इस दफा जब वो पैराग्राफ को पकड़ेगा और उसका कलर चेक करेगा तो वो ग्रीन नहीं होगा, तो एल स्टेटमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे आके वो उसको ग्रीन कर देगा। ठीक है, तो वॉच दिस, ये ग्रीन है, रेड हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हो गया। ठीक है, तो यू कैन डू कूल स्टफ विद दिस। लेट मी टेक अ पोल एंड यस, जो क्वेश्चन है कि हाँ, जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एक सीएसएस को चेंज कर दिया है तो ज़ाहिर है कि वो जो एग्जिस्टिंग सीएसएस है उसको ओवरराइट कर देगा। क्योंकि ये बाद में किया आपने, तो वो ब्राउजर जूम करता है कि अब आप ये करना चाहते हैं। पहले जो आपने स्टाइलिंग भेजी थी साथ में एचटीएमएल के, शायद आप उसको ओवरराइट करना चाह रहे हैं, तो वो ओवरराइट कर देगा उसको। ठीक है, तो इट सीम्स इट्स क्लियर टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन। उसको भी और क्लियर हो जाएगा, तो पहले 2 लोगों क्लियर नहीं था, अब एक बंदे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है, और भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। दी पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ठीक है, आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स क्रिएट अ बटन। मैं आपको कुछ दिन से कह रहा हूँ ना, ये हम आखिरी चीज आज करते हैं, इसके बाद लेट यू गो। मैं आपको कुछ दिन से कह रहा हूँ कि बटन आप बना सकते हैं, उसे प्यारा भी कर सकते हैं सीएसएस से, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे जो हेडिंग है उसके अंदर नंबर रखता हूँ 1 0। ठीक है, बटन जो है इसको आईडी देते हैं माई बटन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप आते हैं। नाउ आई वांट कि जब ये बटन क्लिक हो तो ये जो नंबर 0 है ये 1 हो जाए, अगर 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए। यूजर जितनी दफा क्लिक करे ये बटन बढ़ता रहे। इसे काउंटर एप्लीकेशन कहते हैं, मैं काउंटर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ये नजर तो आ रहे हैं लेकिन बटन करता कुछ नहीं है। ठीक है, सो what do I need? First of all, I want कि when the user clicks the button, something should happen. A function should be run. वो फंक्शन मैं प्रोवाइड करूंगा। ये करने के 2 तरीके हैं। पहला है, यहाँ पे एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप एक फंक्शन का नाम बता दें। आप कहते हैं माई फंक्शन, उसको कॉल कर दे, तो ब्राउजर करेगा क्या, आपके जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जाएगा और इस नाम का फंक्शन ढूंढेगा माई फंक्शन के नाम से। अगर आपने उसको डिफाइन किया हुआ है तो उसे रन कर देगा। अभी उसमें हम फोर लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं क्लिक मी करता हूँ तो वो हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्लिक मी किया, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे कहा है कि व्हेन दिस बटन इज क्लिक्ड रन दिस जावास्क्रिप्ट कोड, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन वो यहाँ ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा तो उसको रन कर देगा। ठीक हो गया ये, लेकिन हम अक्सर नहीं करते। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में ये काम करते हैं। हम पहले बटन गेट करते हैं,
ये आईडी दी थी ना मैंने। मैं जावास्क्रिप्ट का कोड पैरेलल में खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो ये बटन है जिसकी आईडी है माई बटन, हमने उसको गेट कर लिया। ठीक है, हम अब इस बटन ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया था कि डॉम में एवरी HTML एलिमेंट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज दैट ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट हैज मेनी प्रॉपर्टीज, जिसमें से कुछ आपने अभी देखी भी हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन जो है वो है ऐड इवेंट लिस्नर। इस फंक्शन को आप एक फंक्शन देते हैं अपना, अपनी मर्जी का। ठीक है, जो कि वो है वो माई फंक्शन जो हमने अभी लिखा था, जो लेट से फिलहाल सिर्फ कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड करता है। ठीक है, ये माई फंक्शन मैं इसको देता हूँ। तो अच्छा, ऐसा ही इसको आप दो चीजें देते हैं। दूसरी आर्ग्यूमेंट में आप फंक्शन देते हैं, पहली आर्ग्यूमेंट में आप इसको एक स्ट्रिंग देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि इवेंट की टाइप क्या है, विच इवेंट शुड हैपन दैट शुड ट्रिगर दिस फंक्शन। So we want it to be the click event, but we have many more events. For example, you have blur, you have close, you have hover, you have drag, जब यूजर क्लिक एंड ड्रैग करे इसके ऊपर, फोकस करे यूजर इसके ऊपर, इस पे यूजर एक बटन दबाए, जब ये लोड हो जाए, इस पे यूजर इस माउस एंटर या माउस लीव, जब इसके अंदर माउस आए हवर करते हुए, या जब इसमें से माउस निकल जाए। ठीक है, हर इवेंट के लिए यू कैन डू स्टफ। ठीक है, तो हम अभी क्लिक कर रहे हैं, तो आई एम सेइंग ये जो बटन है इस पे एक इवेंट लिस्टनर लगा दो। इवेंट लिस्टनर का मतलब क्या है, हम ब्राउजर से कह रहे हैं कि यार यू मस्ट लिसन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू अकर। ठीक है, व्हाट इज दैट इवेंट, व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन। यूजर बटन पे क्लिक करता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, इट्स एन इवेंट ना, ये कुछ हुआ है, इट्स समथिंग हैपेंड। तो वी टेलिंग द ब्राउजर के लिसन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी वेट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। व्हाट इज दैट इवेंट, इट इज द क्लिक इवेंट। ठीक है, एंड व्हेन दैट इवेंट हैपेंस, व्हाट शुड यू डू, यू शुड कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द सेम एज व्हाट वी डिड ओवर हियर यूजिंग द ऑन क्लिक। ठीक है, बट यूजुअली यू विल सी कि वो, चूंकि ये जरा कम्बरसम है कि यहाँ पे HTML में थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वो थोड़ी सी मेसी लगती है। और फिर ये कि आपका जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट इधर पड़ा हुआ है, यानी वी लाइक टू कीप आवर जावास्क्रिप्ट इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट फाइल, तो इसलिए हम अक्सर ये वाला काम करते हैं ऐसे। तो लेट मी गो हियर, आप देखें इफ आई क्लिक हियर इट सेज हेलो वर्ल्ड, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, बट दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, इवेंट लिसनर्स। ठीक है, आई कैन ऑल्सो डू इट ऑन हवर। तो वॉच, ये बटन था, बटन पे मैं जैसे ही हवर करूंगा, ये सॉरी आई थिंक हवर का शायद इवेंट नहीं होता, माउस एंटर होता है। ये मैंने माउस एंटर किया तो हेलो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, मैं अगर दोबारा करता हूँ माउस एंटर, ये ठीक है ऐसे हो गया। आई कैन ऑल्सो डू इट ऑन माउस लीव, विच मीन्स कि जब मैं माउस अंदर लेके जाऊंगा बटन के तब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब माउस बाहर लेके आऊंगा ये तब हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। यू कैन से कि जब माउस एंटर हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं। माई फंक्शन के अंदर आई कैन से जब एंटर हो जाए, ठीक है, तो आई गेट द डॉक्यूमेंट, द बटन, या इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये मेरे फंक्शन में भी पड़ा हुआ हो। आई कैन से बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, आई कैन मेक इट रेड। ठीक है, एंड लेट्स कॉल दिस माउस एंटर हैंडलर, इवेंट हैंडलर। इनको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं कि एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को हैंडल करने के लिए मैंने जो फंक्शन लिखा है ये वो फंक्शन है। ठीक है, मैं एक और इवेंट भी लिखूंगा, एक वो इवेंट और इवेंट हैंडलर लिखूंगा नीचे, माउस लीव इवेंट हैंडलर, जो क्या करता है कि बटन के बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देता है। ठीक है, और मैं अब यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर लगाऊंगा माउस लीव का, जिसको मैं ये फंक्शन दूंगा ऐसे। ठीक है, आई क्रिएटेड अ फंक्शन, आई सेट के माउस एंटर के ऊपर इसको कॉल कर देना, क्रिएटेड अनदर फंक्शन एंड सेट की जब माउस लीव हो तब ये कॉल कर देना। ठीक है, नाउ लेट्स गो हियर, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे है, आई हवर द बटन बिकम्स रेड, आई हवर आउट इट बिकम्स ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, एंड अगेन दिस इज आई एम डूइंग इट इन अ वेरी कम्बरसम वे, यूजुअली हम ऐसे नहीं करते क्योंकि मुझे था कि आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। यूजुअली हम फंक्शन इन लाइन करते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं फंक्शन को, और नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह ऐसे। बट अभी शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता हो, लेकिन वही चीज़ है। ठीक है, मैंने बस नाम की जगह फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये कंसाइज है, और एंड वंस यू गेट यूज टू इट, दिस डज नॉट सीम कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। एड इवेंट लिसनर को मैंने एक स्ट्रिंग दी है और एक फंक्शन दिया है।
it does the same thing. ठीक है. ये अगेन ये जो मैंने इफेक्ट अभी बनाया है, ये आई कैन अचीव दिस विद CSS, प्लेन CSS एज वेल, hover pseudo class के जरिए, but still it's pretty cool. So yeah, we'll see next time more of what we can do with DOM and these objects. But for today this is it. Just let me take a poll and then you can leave. Poll. All right. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. Hafiz.